हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप अच्छे होगे और अच्छे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, जल्दी अच्छे हो जाओगे। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमने एक आर्मी वेटरन पर्सन के साथ किया है। तो आज का पॉडकास्ट हमने कर्नल चौहान सर के साथ किया है, जिनको इंडिया के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं, जो कि हैं वीर चक्र और सेना मेडल। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। हेलो सर, हाउ आर यू? Oh, fine, thank you. Nice. सर, ये मेरा आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। इट्स लाइक अ ग्रेट ऑनर फॉर मी आपके साथ बातें करना। तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला सवाल मेरा ये है, आर्मी में हर एक मोमेंट नियर टू डेथ होता है। तो सर, आपने अपना फियर ऑफ डेथ कैसे हटाया? Okay. Shubham, at the outset, thank you for giving this opportunity. And it was a great pleasure meeting you. And it's good that you selected this field. And I wish you best of luck. Now, coming to your question, see, what is fear? Fear is it is just an emotion. It can come out of anxiety. It is fear of unknown, or you're walking in a jungle. It's total dark. You can't hear anything. So all these things create a sort of feeling in your mind, which has been described as fear. Now you said that everyone in the army is near to death, which is not correct. See, first of all, Army is a volunteer organization. Anybody who joins Army, it's not that he's going there to sacrifice his life. Not must. But fortunate are those who get this opportunity to sacrifice themselves for the nation. It's a great honor and opportunity. But that is very, very negligible percentage if you see the whole army. So if you see fear, now when you're, I'm giving you a particular scenario of war that you feel, okay, when you know that you're going to war and the bullets are going to fly, and but you're protected. You're wearing helmet. You're wearing what you call bulletproof. You have kneecaps. You got shoulder pads. Everything. You're so protected that anything come from the front, you will not die. Yes, a minor bruises, scratches here and there. That goes without saying. But everybody will not get a straight bullet on his head or on his chest. Even if it is on the chest, it will be ricochet and the fellow may be unconscious. So that fear doesn't come. Because there you're leading your... see, before I just diverting from this, Army is the only organization where a body of 200 troops follows you on your single order. That's the only organization in this world, I would say. And when you're leading those many bodies, when you're leading so many troops to the war, and if you have a slightest fear in your mind, your troops will not follow you. You have to lead them from the front. You can't be at the rear and start shouting at them, idhar maro, udhar maro. You have to lead in the front. Start doing yourself so that your people follow you as per this plan. So the fear was, I never felt that कि मैं मर जाऊंगा, लड़ाई हो रही है, वैसा. Never had that sort of thing. Yes, fear is there. After the war, like I'll tell you, the shelling is going on. First round, when it falls on the ground, we just hear bang and we don't know what is happening. Third, fourth, fifth. After sixth round, we couldn't even say, okay, wahan se aa raha hai, idhar girega. That is, then we have overcome the fear. The first round, yes, one was
एप्रीहेंसिव, कहाँ गिरेगा, मेरे को भी चोट लग सकती, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज फियर ऑफ अननोन. बट वन वी noticed the flight of that shell or bomb, then there was no fear. And we were there moving, the bullets are flying, these bombs, shell, mine, everything, and we were moving ahead. जब तक तुमको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है तो तुमको डर है. मैंने जैसे पहले भी बोला ना, अंधेरा है तो तुम्हें पता नहीं, तुम्हें एक रास्ते में जा रहे हो, कहीं से पत्ता हिलने की भी आवाज़ आती है तो लगता है ना कुछ पीछे से आ रहा है. दैट इज फियर ऑफ अननोन. एंजाइटी से हो सकता है, इमोशन से भी होता है. व्हेन यू आर emotions like you meeting somebody for the first time, like I'll give you at your age when you're meeting your girlfriend for the first time, you're excited, that fear is there. यार पता नहीं क्या बोलेगी, क्या मुझे बोलना है. So that is also a fear. तो लड़ाई में ऐसा एटलीस्ट मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि आगे से गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब गिर रहे, शेल गिर रहे, मेरा क्या होगा. सर मतलब आपने आर्मी की चूज करी, मतलब बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स होती हैं, तो व्हाई डिड यू चूज? ओके बेटे, ऐसा होता था. अभी द प्रेजेंट डे सिनेरियो बहुत सारे एवेन्यूज हैं. आई एम टॉकिंग ऑफ 60s व्हेन वी हैड जस्ट स्विच्ड ओवर टू द ग्रेजुएशन. We had limited avenues available. Either you apply for the government services, that is IAS, IPS, ITRS, all these, because the revenue service, all these things started much later. And in our time, this administrative services, like which you have now, MBA, ऐसा कुछ नहीं होता था, तो limited avenues होते थे. Notwithstanding that, मेरा शुरू से ही झुकाव यूनिफॉर्म की तरफ था. चाहे वो आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो. स्कूल में था तो मैं एयरफोर्स का कैडेट था और सौभाग्य प्राप्त हुआ एयरफोर्स में ग्लाइडिंग, फ्लाइंग वगैरह में भी हिस्सा लिया. और 1967-68 जो रिपब्लिक डे परेड हुआ उसको लीड करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ. तो वहीं से बचपन से ही चाह थी कि मैं यूनिफॉर्म में ज्वाइन करूं और देश की सेवा करूं. ऐसा नहीं कि देश की सेवा तुम यूनिफॉर्म से ही कर सकते हो, कहीं पे भी आप ये काम कर रहे हो, अगर आप मन से सच्चाई से ये काम कर रहे हो तो आप भी देश की सेवा कर रहे हो. अपना निजी स्वार्थ नहीं, आपने जब तक देश के लिए कर रहे हो तो वो भी देश की सेवा है. पर मैंने ठाना था कि मैं यूनिफॉर्म पहन के, चाहे वो आर्मी की है, नेवी की, बिकॉज पहली बार ही मैं नेवल एविएशन के लिए सेलेक्ट हुआ, जो उस समय बहुत पहला कोर्स था हम लोगों का, तो मेरे घर से नहीं जाने दिया, तो नहीं जा सके. तो लाइक दैट एक तो डेस्टिनी जहाँ होती है वहीं मिलता है तुमको. तो दैट्स हाउ आई जॉइन आर्मी. आपने रिपब्लिक डे की परेड को लीड किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप इतने पूरे देश से आप सेलेक्ट कर रहे हो. 4 लोग होते हैं जो लीड करते हैं, उनमें से एक मैं था. तो इट्स अ ग्रेट ऑनर. हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था जैसे अभी. कैंप लगता था, कैंप लगने के बाद फिर यू गो फॉर द आर्मी डे. अभी शुरू हुआ, हमारे टाइम पे नहीं होता था. एंड वहीं से रिपब्लिक डे परेड के लिए जाते थे. सर मेरा एक और ये क्वेश्चन था कि माइंडसेट क्या होता है? आपने वॉर्स फेस कर रखी है, आप एक पर्टिकुलर वॉर में थे, तो मतलब वॉर के टाइम पे माइंडसेट क्या होता है? क्योस होता है या आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं? या यू सेड इट बेटे, क्योस होता है. लाइक अब 2 तरह का है. इफ you're on a defensive means you're holding a particular post or picket or a locality. These are different terms, I don't want to go into it. तो जहाँ पर आप हैं और आपको खबर मिलती है कि यहाँ से हमला हो सकता है, तो आपको मालूम नहीं है किस दिशा से आएगा, पूर्व से आएगा, पश्चिम से आएगा. तो that uncertainty is there. Once
सी यू हैव, अगर आप डिफेंस में हैं तो आपके अलार्म सिस्टम होते हैं, तो वो अलार्म सिस्टम चाहे आपका प्रोटेक्टिव पेट्रोल है चाहे कुछ भी है, तो वो अलार्म सिस्टम आपको बता देता है। फिर क्या होता है, उन दुश्मन की आर्टिलरी है जो फायर कर रही है, दुश्मन की हमारी भी आर्टिलरी है, दुश्मन का जिस इलाके में ज़्यादा आर्टिलरी फायर हो रही है दैट मीन्स वहाँ से बिल्डअप होना शुरू होगा। तो वो एक अनसर्टेनिटी रहती है जब तक कोई चीज़ शुरू नहीं हो जाती। एक बार शुरू हो गई तो व्हेन यू आर इनटू इट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर आपने कौन सी वॉर फेस करी? बेटे भाग्य से 1971 की लड़ाई में मेरे को हिस्सा लेने का मौका मिला, और उसके बाद फिर नागालैंड में इंसर्जेंसी, बहुत डीप इंसर्जेंसी सी, नागालैंड नागा NHCN वगैरह बहुत एक्टिव थे उन दिनों, तो वहाँ हिस्सा लेने का मौका मिला। यही 2 वॉर हमारे टाइम पे, कारगिल के टाइम पर हम लोग पीछे थे, आगे नहीं जा सके थे। कारगिल में मैंने हिस्सा नहीं लिया। जो आपने वॉर फेस करी उसमें मतलब आप कुछ और बता सकते हैं? बेटे देखो, जो 71 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, हम लोग सन 71 में ही पास आउट हुए, और उस समय मेरी उम्र 21 साल की थी टोटल। और जैसे ही हम पास आउट हुए उसके 3 महीने के बाद लड़ाई शुरू हो गई। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यूनिट क्या है, कैसा है, पूरे लोगों को अभी मिल ही रहा था कि मुझे लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका मिला, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमको पता लग गया था कि दुश्मन ने बांग्लादेश वगैरह में हमला शुरू कर दिया है, तो लड़ाई शुरू हो गई है। और इधर हम लोग पुंछ में थे उस समय, पुंछ सेक्टर में, कि हमारे ऊपर भी हमला आ सकता है करके। तो 3 तारीख को 6 बजे के करीब हमको खबर मिली कि हमारे वेस्टर्न सेक्टर में भी लड़ाई शुरू हो गई है, और पाकिस्तान जो है वो लिमिटेड ऑपरेशन, मतलब छोटे रूप में, बांग्लादेश में तो बड़े में था, पूर्व ईस्टर्न सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में लिमिटेड कर सकता है और हमारे इलाके में आ सकता है। नाउ बिफोर आई गो इनटू इट, थोड़ा सा आपको बहुत छोटे तरीके से मैं बताऊंगा कैसी ज़मीन थी। पुंछ का इलाका पहाड़ी इलाका है, तो हम लोग जहाँ पर थे वो एक ऐसी जगह थी कि जिसके बाईं तरफ बड़ा नाला था, बरसाती नाला, तकरीबन 60, 70, 80, 100 फीट भी होता था कहीं कहीं पर। और दाहिनी तरफ भी, मैं ईस्ट वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम उसको ओरिएंट नहीं कर पाओगे, दाहिनी तरफ भी नाला था। हम लोग जो पोस्ट ऑक्युपाई कर रहे थे, अगर दुश्मन उसको ले लेता तो वो सीधा पुंछ टाउन से होता हुआ रजौरी तक पहुंच सकता था। जो ये नाला मैंने तुमको बताया है ईस्ट साइड में था, उसमें टैंक तक उनके आ सकते थे, गाड़ियां तक आ सकती थी। तो हमारी पोस्ट की इतनी अहमियत थी। टटादी रंगर उसका नाम है। और तो जैसे हमको खबर मिली कि भाई आ रहे हैं करके, तो हम लोगों ने एक स्टैंड 2 कहते हैं, वो हम लोग स्टैंड 2 में चले गए, और जितना भी हथियार है, एमिनेशन है, वो सब हम अपनी अपनी पोस्ट में रख लेते हैं। उस समय लड़ाई की हालत है, जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमारे से तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आगे प्रोटेक्टिव पेट्रोल होता है, छोटा सा, 2-3 आदमी होते हैं जो आपको पीछे खबर भेज देते हैं कि क्या हो रहा है करके। तो इस तरह से तीनों दिशाओं में गए हुए थे। चारों तरफ माइन फील्ड लगी थी, सर्दियों का इलाका था, तो बहुत बड़ी बड़ी सरकंडा ग्रास चारों तरफ उगी हुई थी। पोस्ट के चारों तरफ पहले तो हरी थी वो, अभी जाड़े के कारण सूख गई थी, पूरा सूखा हुआ था। माइन थी, 1947 से लेके अभी तक वहाँ पर थे, तो माइन फील्ड लगी हुई थी चारों तरफ, बार्ब्ड वायर थी, मतलब वी वर टोटली प्रोटेक्टेड।
तो ये मैंने छोटा सा आपको दिया कि किस तरह की ज़मीन में हम लोग थे। हम लोग जो पाकिस्तान का हमला सोच रहे थे कि वो नॉर्थ साइड से आएगा, यानी क्योंकि जहाँ नॉर्थ साइड है वहाँ वो डोमिनेट कर रहे थे। हम लोग थे 2700 में, तो वो 4700 फीट में थे। वहाँ से वो नीचे रोल करके हमको पॉइंट ब्लैंक मार सकते थे। उनकी 4 पोस्ट थी जहाँ से हम डोमिनेट, जैसे हम अगर नीचे 2000 में हैं तो वो 4000 5000 ऐसी हाइट्स में थे जहाँ से हमारे को एम करके वो मार सकते थे। वो कर भी रहे थे, पर उन्होंने नॉर्थ साइड से नहीं किया हमला, साउथ से हमला किया, यानी कि हमारे पीछे से, विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वनरेबल। मतलब वो भी एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से कर सकता है, पर प्रायोरिटी वो ऊपर को देगा क्योंकि उसके नज़दीक है। तो जब वो लोग पीछे से आए तो पीछे से आए वो ऐसे कि 4-5 दिन पहले तकरीबन वहाँ पर एक गांव है जहाँ पर बारात आई। बारात में बहुत लोग थे, सरों में उनके संदूक रखे थे, विच इज़ अनयूजुअल। गरीब लोग हैं वहाँ पर भी, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि इतना सामान लेके आएंगे, पर हमको शक तो पड़ा था कुछ गड़बड़ हो रहा है करके, आर्मी बिल्डअप कर रही है ये करके, इतना हमें मालूम था। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, दाहिनी तरफ नाला था, वहाँ से उस गांव से आना शुरू किया उन्होंने। नाले में हमको कोई चीज़ नहीं दिखाई देती थी, खासकर रात के टाइम में कौन आ रहा है क्या आ रहा है, अंधेरा हो जाता था। वो बहुत रीएंट्रेंट, मतलब 2 पहाड़ों के बीच की जगह को रीएंट्रेंट बोलते हैं। तो वहाँ से वो लोग आए और हमारे साउथ में आके फॉर्म अप करना शुरू किया, मतलब लाइन बना दें। जब वो हरकत शुरू हुई तो जो हमारा प्रोटेक्टेड पेट्रोल था उन्होंने उनकी हरकत को नोट किया। तो वो जब अलार्म किया उन्होंने, तब तक वो बहुत आगे आ गए थे। तो वो हमारी तरफ नहीं आए, हमारी बटालियन हेडक्वार्टर की तरफ भागे। एक आदमी नहीं भाग सका, जिसको उन्होंने जो मिला उसी ने उसके बैनेट से उसको मारा। जब ये हरकत हो रही थी हम लोगों को भी आहट हो गई थी कि कुछ हो रहा है आगे करके। तो हमने आने दिया उनको। तकरीबन वो जब 100 गज की दूरी पर थे तो हमको दिख रहा था, अंधेरा था पर दिख रहा था। उनको और नज़दीक आने दिया क्योंकि रात के टाइम में 100 गज बहुत ज़्यादा होता है। हमने और नज़दीक आने दिया उनको। उनको लगा कि हमें बिल्कुल मालूम नहीं, क्योंकि हमारी पोस्ट में पिन ड्रॉप साइलेंट था। चारों तरफ से मोटर, आर्टिलरी, आरसीएल होता है रिकॉइललेस गन, उसके राउंड फायर हो रहे थे। और जो एमएमजी ऊपर टीपू पोस्ट था, एक टीपू 1 टीपू 2 बोलते थे, वहाँ से वो लोग एमएमजी और एचएमजी, हैवी मशीन गन और मीडियम मशीन गन हमारे ऊपर डायरेक्ट फायर कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ट्रेसर्स मिलाए हुए थे। तो वो ट्रेसर्स क्या होता है, रात के टाइम में आपको पता लगता है कहाँ पर मेरा राउंड जा रहा है करके। तो वो एक पूरी पोस्ट को उन्होंने ट्रेसरों से इतना फायर किया हुआ था। वो हमको, क्योंकि हम ट्रॉल ट्रेंच के अंदर थे, बाहर ओपन में थे, कोई वो उसका हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। जब वो लोग तकरीबन 20-25 की गज की दूरी पर आए तो मैंने उनको चैलेंज किया। आर्मी में चैलेंज करने का तरीका है थम कौन आता है। तो जैसे ही मैंने बोला थम कौन आता है, तो वहाँ से जवाब आया कि तुम सब लोग हमारे चारों तरफ से, हमने तुमको घेर लिया है, हमारे कब्जे में हो और अपने हथियार गिरा दो, नहीं तो मारे जाओगे। मारे जाओगे कहना था, तो मैंने फायर का ऑर्डर दिया और चारों तरफ से मेरा यूनिट का फायर उनके ऊपर जाकर गिरा, जिसकी उनको होश नहीं थी। वो हमारे में एक आर्मी में कहते हैं फायर डिसिप्लिन, तो ये एक फायर डिसिप्लिन का नमूना था। जब इतना फायर आया तो उन्होंने वहाँ से रॉकेट लॉन्चर फायर किया, क्योंकि मेरी आवाज़ जा रही होगी, मैं लोगों पे चिल्ला रहा था। तो हम भी एलएमजी फायर कर रहे थे, जहाँ से वहीं खड़ा था मैं। तो एक राउंड सीधा बिल्कुल हमारे ट्रेंच में आकर लगा।
वो अंदर घुस गया, मिट्टी थी अंदर घुस गया, भाग्य से फटा नहीं, अगर वो फटता तो शायद मैं आज आपसे बात नहीं करता होता। वो लोग जब आ गए, तकरीबन हम उनको इंगेज करते रहे, मैं अपने जवानों को कह के कि तुम फायर करते रहो, मैं भाग के ऊपर गया, एमएमजी जो हमारी थी वहाँ पर उसको बोला कि जब तुम, ये हमारी फिक्स लाइन होती है गेट के ऊपर, वहाँ फायर करो। जब वो दोनों एमएमजी ने वहाँ फायर करना शुरू किया, हमारा अपना फायर किया, ऊपर से पैरानोबलेटिंग फायर होना शुरू हुआ, चारों तरफ पता लग गया कि क्या हो रहा है करके। पैराइल्यूमिनेटिंग बॉम्ब होता है 2 इंच मोटर का, उसमें पैराशूट लगा होता है, नीचे लाइट जलती है, तो वो तुमको पूरे इलाके में दिखा देता है कि क्या हो रहा है करके। तो हमको पता था कि भाई तकरीबन 200-300 लोग यहाँ पर हैं और हम लोग गिने हुए 30-32 थे। जब मैं एमएमजी के से नीचे आ रहा था तो एक ये बॉम्ब बोलूँगा मैं उसको, आर्टिलरी का शेल जो है वो गिरा वहाँ, जिसका एक हिस्सा मेरे को लेफ्ट साइड में लगा, चोट लगी इधर भी, कंधे में भी। एनीहाउ मैंने किसी तरह से अपने को संभाला और वापस जवानों के पास गया और उनका हौसला बढ़ाया। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में मैं तुमको बताता हूँ इतना मुश्किल था। जो ट्रेसर फायर कर रहे थे, बताया ना शुरू में, ऐसे हर एक राउंड के साथ ट्रेसर लगा देते हैं, तो पोस्ट में चारों तरफ आग लग गई, सरकंडे थे। तो एक कुआं जो फायर वेल जिसको बोलते हैं, चारों तरफ से आग का कुआं जैसा हमारी पोस्ट थी। वैसे एटमॉस्फेयर में एक जगह से दूसरी जगह से सिर उठाना मुश्किल हो रहा था, पर कोई ऐसे में क्या, तुम कह रहे थे ना शुरू में फियर क्या होता है, तो ऐसे में बेटे फियर गायब हो जाता है। तुमको कोई देवी शक्ति है जो बताती है कि नहीं, तेरी जिम्मेवारी इस समय इस 32 आदमियों को जिंदा लेकर जाना है यहाँ से। और तुम ये लगाओ 3 महीने की सर्विस, 21 साल क्या उम्र होती है, क्या सर्विस होती है, क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। बट दैट इज व्हाट came to my mind, no, you have to live for these 32 people, you have to keep them safe till somebody else come. तो वो जज्बा जो आता है उस समय आपको कुछ नहीं दिखाता। So I was running from place 1 to place B, there were people scared, I patted them up, उनको हौसला बढ़ाया उनको बताया तुम यहाँ फायर करो। एमिनेशन ख़त्म हो रहा था। फिर वहाँ ऐसा होता है हर एक कंपनी में नाई, धोबी, स्वीपर ये लोग होते हैं, एजुकेशन टीचर होते हैं, इनको नॉन कम्बेटेंट बोलते हैं। तो मेरे पास कोई नहीं था जो एमिनेशन ला के दे सकता था सब ट्रेंचों में, तो उन लोगों को बोला मैंने। वो लोग अपने कंधे पे ये एमिनेशन लेके ढो के क्रॉल करते हुए पूरा सब जगहों तक पहुँचाया। मतलब इतना उनकी पीठ में कभी ऐसा जिंदगी में काम नहीं किया था, तो उनकी पीठ और हाथों में छाले पड़ गए थे, खून निकल रहा था वहाँ से। मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ी। एनीहाउ दुश्मन का पहला हमला हमने विफल किया और वो लोग वापस गए। फिर दूसरा हमला फिर किया 9, सवा 9 बजे के करीब, और वो भी हमने विफल किया, क्योंकि तब तक चारों तरफ हमारे जो पोस्ट थी सबको पता लग गया था क्या हो रहा था। एक हमारे जो ईस्ट में, मतलब जो मैं कहूँगा बाईं तरफ 6 सिख थी, तो हर एक बटालियन में एक सूबेदार मेजर होता है। तो सुना वो पंजाबी में अपने ट्रूप्स को कह रहा था कि मतलब अपने भगवान से, गुरु वाहिगुरु, कि अगर मैं कुछ कर सकता है, बेचारे देखो गोरखे किस तरह से जल गए हैं, अगर मैं जाके उनको बचा सकता तो किसी तरह से मैं बचा लूँ वाहिगुरु। मतलब वो प्रार्थना कर रहे थे कि इनको बचो। इतना भयानक सीन था वहाँ पर उस समय। एनीहाउ भगवान हमारे साथ था। हमारे गोरखास का हूँ मैं, जवानों में जोश था। और जनरल मानिक शाह, फील्ड मार्शल मानिक शाह कहते थे, अगर कोई तुमसे कह रहा है कि मेरे को डर नहीं है, तो या तो गोरखा है या झूठ बोल रहा है। मतलब दैट इज द कॉन्फिडेंस लेवल द लीडर्स हैड ऑन देयर ट्रूप्स, गोरखास इन पर्टिकुलर। तुम वर्ल्ड वॉर 1 में देखो, 2 में देखो, हर एक जगह
गुरखास, नॉट दैट कि गुरखास के अलावा सिख भी, जाट भी, सब ने अपना अपना किया, पर मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट बता रहा हूँ जिसमें फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने क्या कहा था करके। और उसके बाद उन्होंने तीसरे हमले की तैयारी की, तो उस समय हमने जो एलिमिनेटिंग राउंड वगैरह फायर किए, वो अपने घायल्स को निकाल के ले जा रहे थे अपनी तरफ, और फिर इस तरह से दूसरे दिन भी हमारे ऊपर हमला किया। हमारे कंपनी कमांडर थे मेजर साहब, वो जब इतना हेवी शेलिंग उनको पता था कहाँ पर है करके, तो उनके बंकर बोलते हैं हम लोग, वो अपने बंकर के बाहर रेडियो से लेके बैठे हुए थे, बड़ा बोल्डर उनके ऊपर गिर गया तो वो अंदर बंद हो गए। फिर 4 तारीख की सुबह हमने उनको हटाया, बाहर निकाला। उसके बाद तो खैर वो पूरी लड़ाई, फिर इस तरह से हम लोग वहाँ 13 दिसंबर तक रहे। और 13 दिसंबर को हमको, क्योंकि क्या होता है लड़ाई में आप लगातार इस तरह से करें, अब चारों तरफ से घिरे रहें, तो मानसिक जवानों का थोड़ा कम होने लगता है। तो इसलिए फिर हमको बदली किया, दूसरे लोगों ने आके किया, हमको रिलीव किया। इस तरह से मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े लड़ाई को लीड करने का मौका मिला, और मेरे को भगवान ने रास्ता दिखाया है, हमारे ट्रूप्स को विजय मिली वहाँ पर। उस लड़ाई में हमको 3 वीर चक्र मिले और 2 सेना मेडल मिले, 1 विशिष्ट सेवा मेडल मिला। घायल हुए 4-5 जवान और 3 शहीद हुए, जो मैं अगर आगे होता शायद उनके साथ तो वो भी नहीं होने देता, पर दुर्भाग्य से 3 शहीद हो गए। नागालैंड में इंसर्जेंसी, जैसे अभी तो आप लोग पढ़ते हो JNK वगैरह में टेररिस्ट वगैरह, ऐसे ही इंसर्जेंसी बहुत पीक में थी नागालैंड में। तो हम लोग उधर थेब्राम जगह है, बहुत ही इंटेंसिफाइड इंसर्जेंसी का एरिया है, तो वहाँ हमने जब मैं कमांड कर रहा था 3-4 कैंप रेड किए। पहले कैंप में तो हमको बहुत बड़ी सक्सेस मिली, दूसरे कैंप में पार्शल सक्सेस मिली, और तीसरे कैंप में उनको पता लग गया और वो लोग भाग गए। तो वहाँ मेरे को सेना मेडल मिला, जो यूनिट कमांड कर रहा था। तो ये बहुत छोटे तरीके, क्योंकि जो ये लड़ाई के एक्सपीरियंस होते हैं ये बेस्ट है अगर हम आपको चार्ट्स, मैप्स, स्केचेस उनसे समझाएं तो पता लगता है कि किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ क्या है, पुंछ कहाँ पर है। अब आधे लोग तो पुंछ जानते ही नहीं होंगे क्या है, पुरानी विरासत है, कैसे थे वहाँ, कौन लोग रहते हैं। तो ये लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे में तुमको बताया है। सर जैसे आपने लीड किया, 32 लोगों को लीड किया था आपने, हाँ, तो सर लीडरशिप एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है, तो सर उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखो बेटे, लीडरशिप इटसेल्फ इज एक पूरा चैप्टर है, बुक है। पर लीडर वो होता है बेटे जो सिर्फ अपने एग्जाम्पल से, अपनी जैसे क्या है वो, यू नीड लॉयल्टी, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अ लीडर मस्ट हैव दीज क्वालिटीज। देन लीडर मस्ट नो हिज, मतलब लीडर को अपना प्रोफेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, थोरो होना चाहिए, तब तो वो लीड कर सकता है। फिजिकली, मेंटली टफ होना चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ तो बहुत है, मैं आपको बहुत छोटे उसमें बता रहा हूँ कि किसी को भी लीड करने के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। जैसे हम लोग क्यों इतने बड़े बड़े जर्नल्स को याद करते हैं, अभी मैंने आपसे मेंशन किया फील्ड मार्शल मानेक शॉ, अभी जनरल कार्डोजो हैं, आप उनको देखिए, उनको अशोक चक्र मिला है, पाँव उनका माइन फील्ड में आ गया था, तो उन्होंने MI रूम से वो मिलता था हमको उन दिनों, ये ऐसा इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता था, मॉर्फिन का कैप्सूल मिलता था। तो उन्होंने अपने सहायक से पूछा कि वो कैप्सूल था मेरे पास कहाँ है, कह रहे सर वो दूसरा घायल हुआ उसको लगा दिया। तो उन्होंने कहा मेरा खुखरी दो, तो उन्होंने खुखरी दिया, अपना जो पाँव जहाँ से झूल रहा था वहाँ से काट के बोला इसको गाड़ दो ज़मीन में।
मतलब वो इतना करेज होता है आर्मी में, लीडर में। तो उसके बाद जब देखा कि जनरल साहब, वो भी गुरखस के थे, कि जनरल साहब में जब इतनी हिम्मत है, अपना पाँव काटने के बाद वो हमको लड़ाई में लीड कर रहा है, तो हम क्यों ना पीछे गए। सो दिस इज व्हाट लीडरशिप इज। वो भी पड़े रहते हैं ऐसे वहां पे, है ना। सो दिस इज व्हाट लीडरशिप इज। अभी दैट मैन, ही क्लाइम्ड सम एवरेस्ट, आई डोंट रिमेम्बर, ही हैड बीन अ मैराथन रनर, स्कॉश खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं आर्टिफिशियल लेग से। अभी आप 3 साल पहले अभी रिपब्लिक डे परेड में भी थे। तो दे आर पीपल ग्रेट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीडर्स। तो करेज था तभी उन्होंने खुखरी से अपने आप अपना पाँव काटा, चल दिया आगे। सर क्या कहते हैं, आपने भी बताया था कि आपकी आपकी टुकड़ी को 2 वीर चक्र और 3 सेना मेडल मिले। हाँ, तो उनमें से आपको भी मिला है? मेरे को भी आपको एक वीर चक्र और एक सेना मेडल मिला है। हाँ, हाँ। तो सर वो एक्सपीरियंस कैसा था? कौन सा? जब आपको वीर चक्र दिया जा रहा है। बेटे वो तो मैं तुमको बयान नहीं कर सकता। मैं इतना एक्साइटेड था उस समय, क्योंकि मेरे को याद आ रहा था कि मैं किस तरह से बच के आया हूँ लड़ाई के मैदान से, किस तरह से जवानों ने मेरा साथ दिया, मेरे एक एक बात को माना। वही मैं तुमसे शुरू में कह रहा था ना, आर्मी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 200 से 250 ट्रूप्स बॉडी जो है वो आंख बंद करके तुम्हारी बात मानते हैं। तो वही एक्साइटमेंट थी, और अपने खोए हुए साथियों का दुख बहुत था मेरे को। एक्साइटमेंट तो होती है। थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दैट आई वाज बीइंग अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड आई वाज जस्ट अ सेकंड लेफ्टिनेंट। उन दिनों लेफ्टिनेंट नहीं होते थे, सीधे हम लोगों को 1 स्टार वाला यहाँ पर सेकंड लेफ्टिनेंट होता था। एंड आई हैड व्हेन आई रिसीव्ड दैट अवार्ड, दैट्स अ फोटोग्राफ I received. I just had 1 year's of service. So it was a great, I was excited. Sir, क्या कहते हैं, what was your best experience? There are n number of all achievements in the army are best experiences. You know, best experience is that I had so much of, the troops had faith on me. That was a big एक्सपीरियंस जो मेरे को अच्छा लगा कि जवान आपको जब दिल से चाहता है तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। एक्सपीरियंस तो बहुत है अच्छे, जहाँ अपने खेल के मैदान में हैं, चाहे लड़ाई के मैदान में हैं, चाहे ट्रेनिंग के दौरान हैं, ट्रूप्स के साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। पर अब उनको किस तरह से मैं बयान करूं, ये मैं कह नहीं सकता आपको। तो ये अब मैं सवाल आपसे पूछने आ रहा हूँ, वो थोड़ा शायद कंट्रोवर्शियल है, बट क्या कभी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इंटरफेयर या इंटरप्ट किया आर्मी को? बेटे ऐसा है कि आर्मी जो है वो अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट की। बिकॉज गवर्नमेंट ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है, आर्म्स, एमिनेशन, हथियार तुम्हारे दे रही है, तुमको पॉलिसी बना रही है, तुमको वो पॉलिसी फॉलो करनी है। सो आई वोंट कॉल इट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अभी भी नहीं है ऐसा कुछ। इट्स अ पॉलिटिकल आर्मी, देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द आर्मी. The army, yes, the guidelines, policies are laid down by the government and defense services, armed forces, that is army, navy, air force, वो उनको फॉलो करते हैं. अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल जो IAS चैनल है वहाँ से भी आपको आता है, पर दैट इज नॉट इंटरफेरेंस. सर आर्मी में पहले से लेके अभी तक का मतलब पहले की आर्मी और अभी की आर्मी में अगर चेंज आया है आपके अकॉर्डिंग? हाँ बेटे, सी चेंज है. सी चेंज मतलब बहुत चेंज आया है. जब हम लोगों ने आर्मी ज्वाइन की थी बेटे, तब हम एक डब्बे में छेद करके उसमें ट्यूब डाल के उसमें
लाइट जला के अंधेरे कमरे में रहते थे, मतलब डिबरी बोलते थे उसको, छोटी बत्ती दिया जैसा उसका, और कमरा भी क्या होता था, मिट्टी का लीपा हुआ कच्चे उसका बंकर उसमें होता था, और केरोसिन में रोटी पकती थी उन दिनों। अब तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया बेटे हम लोगों को। लाइक जब मैंने सर्विस ज्वाइन की 320 रुपया मिलता था 1971 में, और अब पहले अभी भी अच्छा नहीं है, पे इन अलाउंसेस तो डिफेंस फोर्सेस की अच्छी नहीं है, तभी तो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे, तभी तो लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे ऑफिसर्स की 39,000 ऑफिसर्स की डेफिशिएंसी है आज, इतनी, इससे कई लाख जवानों की है। क्योंकि आपको जो बाहर, जैसे तुम कह रहे हो कि तुमने अभी बीबीए किया, बीटेक है, आर्मी में भी बीटेक आते हैं लोग, पर एक बीटेक को बाहर मिल रहा है से 36 का पैकेज मिल रहा है, 36 लाख। यहाँ दैट फेलो इज गेटिंग जस्ट अराउंड से 60,000 पर मंथ। तो उस कारण जो है इट इज़ नॉट वेरी मनी वाइज, आर्मी इज नॉट, Army, Navy, Air Force is not very attractive. Yes, if you're fond of adventure life, if you want to live a way of life, Army, Navy, Air Force से प्रोफेशन नहीं है, these are way of life. आप वो जीना चाहते हो, उसको आके एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट सर्विस। इससे अच्छी सर्विस मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं देखी। मैंने फौज में नौकरी की 37 साल, उसके बाद सिविल में भी 9 साल में रहा, एडुकॉन सॉल्यूशन लिमिटेड में हायर मैनेजमेंट में था। पर मेरे को जो फौज में, आर्मी में जो अच्छा लगा, वो बाहर नहीं अच्छा लगा। सर, आर्मी में आपने कोई ऐसी चीज सीखी जो आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं? Yes, everything. Everything. I told you, na, it is a way of life. So you can't change your way of life. आप सुबह उठ रहे हो, शेव कर रहे हो, पीटी के लिए जा रहे हो, वापस आ रहे हो ऑफिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, किसी चीज़ और दूसरे काम के लिए, ऑफिस वर्क के लिए तैयार होके जा रहे हो, आ रहे हो, लंच हो रहा है, then you going for games at 4 o'clock, coming back you going for officers game, then you're going for either study or some entertainment or some function. So it has become a routine in our life. और हमारे बच्चे, हमारे वाइफ, बच्चे, ये सब इसी रूटीन, इसी वे ऑफ लाइफ के यूज टू हो जाते हैं। तो मैं अभी भी वही फॉलो कर रहा हूँ। सुबह उठ के अपना फ्रेश होके आई गो फॉर रन, आई डू माई पीटी, आई डू एवरीथिंग, एंड देन होल डे आई रिमेन ऑक्युपाइड। सो आर्मी में डिसिप्लिन, आर्मी मेनली डिसिप्लिन के लिए बहुत जानी जाती है, सो डिसिप्लिन पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बेटे, डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो आर्मी को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसको साथ बांधे रखती है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, इफ़ यू डोंट ओबे ऑर्डर्स, इफ़ यू, देन यू कांट बी अ गुड लीडर, यू कांट बी अ गुड फॉलोअर। सो डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अगर अनुशासित नहीं है, अनुशासन नहीं है किसी में, तो वो अच्छा न लीडर बन सकता है, ना फॉलोअर बन सकता है। सर, अभी गवर्नमेंट ने एक नई योजना निकाली है, अग्निवीर। ओके। तो आपको उसके बारे में पता ऑब्वियसली होगा ही। तो सर, आपके अकॉर्डिंग वो सही है? क्योंकि बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल का कह रहे हैं टेन्योर बहुत कम है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही है या? बेटा, ये मेरा पर्सनल वो है ओपिनियन। मैं किसी गवर्नमेंट का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, अभी भी नहीं फॉलो करता। यस, गवर्नमेंट है, हमारी देश की सरकार है, वो तो है ही सर्वोपरि। जो ये अग्निवीर निकाला है ना बेटे, सबसे पहले देखो, आज हमारा जो बच्चा है पढ़ने के बाद, चाहे 10-12 BA MA करने के बाद क्या ढूंढ रहा है? रोजगार ढूंढ रहा है। एक जगह आप चिल्ला रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने तुमको एक एवेन्यू दिया है, अग्निवीर, कि तुमको बोला 4 साल तुम
हम तुमको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद हम एक पर्टिकुलर फील्ड में तुमको रखेंगे, उसके बाद हम तुमको बाहर भेजेंगे और 33 to 37 लाख तुमको देंगे। बेटे पहले तो तुम खुद मुझे ये बताओ कि कौन से, तुम चाहे कितना ही एमटेक है, एमएस है, कुछ किया है तुमने, तुम 37 लाख 4 साल में कमा के ला सकते हो? तो मुझे बताओ, इसमें अभी एक पॉइंट दिया है मैंने तुमको, ये क्या बुराई है इसमें? ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाई 4 साल बाद कहाँ जाएंगे। देखो, आज से पहले इमरजेंसी कमीशन भी था ऑफिसर्स के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन अभी भी है जिसमें 5 साल का पीरियड होता है, 5 साल के बाद रेगुलर होते हैं। इसमें भी तो बोल रहे हैं कि हम 25% रखेंगे, इसमें ये तो नहीं बोल रहे हम 100% को बाहर करेंगे। उसके बाद जो 75% बचता है उनको बोला गया है कि हम तुमको बीएसएफ, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में तुमको बताएंगे। तो अगर कोई काबिल होगा, आर्मी ने उसको रिकमेंड किया होगा, पहले तो वो रिटर्न आर्मी में ही रहेगा। जब वो आर्मी से चला गया तो उसको बीएसएफ, पुलिस वो अब जॉब कर रही है, क्योंकि उनको एक डिसिप्लिन सोल्जर मिल रहा है जो ट्रेंड है, मेंटली रोबस्ट है, मेंटली फिट है। तो मेरे को तो भी कोई बुराई इसमें नहीं नजर आ रही। अभी हम अपने देश में अभी शुरू कर रहे हैं, शुरू भी नहीं हुआ है, शायद अब रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हुआ है अभी, लेकिन देश ऐसे 30-32 देश ऐसे हैं जो आज से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू कर रखा है जिन्होंने। अब देखो, इजराइल है, ब्रिटेन है, रशिया है, हाँ, ये सारे देशों में तो वही है, शॉर्ट टर्म एनरोलमेंट है। लेकिन क्या है कि किसी ने कोई एक तरह से लोगों को बहकावे में लाने, मेरे तरफ से, मेरा अपना ओपिनियन है कि बेकार में लोगों को बहकाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की पॉलिसी, और इसमें लोगों को जो जाएंगे और रहेंगे फौज में, बाहर आएंगे, आप तब उनसे पूछना आपको क्या। अभी मुझे ये बताओ, लाखों लोग रजिस्टर करा रहे हैं अपने आप को, नेवी और एयरफोर्स में रजिस्ट्रेशन फुल हो चुकी है, लेडीज तक की, अभी गर्ल्स की तक जो है आर्मी में फुल हो गई है। वाई? उनको तो क्या हुआ है, जो मैंने भी अखबार में ही पढ़ा, जो ये आजकल छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रहे ना, लाखों रुपया लेते हैं ये बच्चों से। अब वो गरीब माँ बाप अपना गाय भैंस गहने बेच के उसके लिए करते हैं पैसा। वो बच्चा जाके वहाँ ट्रेनिंग लेता है, वो सोचता है वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है उसकी कमाई बंद हो जाएगी इसके बाद। तो वो वैसे लोगों के थ्रू कुछ एक जो पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने बहकाना शुरू किया, जहाँ से ये क्या होता है, झूठ जो है वो बड़ी जल्दी फैलता है, बोलो वाइल्ड लाइफ जैसे, वाइल्ड फायर की तरह से। वही हुआ है। अभी जब ये शुरू हो जाएगा फिर आप देखना, यही लोग जो रहेंगे उसमें एक अच्छे नागरिक, एक अनुशासित नागरिक बनकर वहाँ से आएंगे और देश के लिए अच्छा करेंगे ये। क्योंकि बाकी जगह भी तो, अभी देखो इजराइल इतना सा छोटा देश है, अमेरिका को कितने सालों तक उन्होंने परेशान करके रखा, क्योंकि वहाँ हर लेडी, हर आदमी, हर बच्चा ट्रेन है मेंटली। हाँ, तो अगर वो हम उन देशों को देख रहे हैं, ब्रिटेन देखो आप, रशिया देखो, जितने बड़े बड़े नाम गिना रहा हूँ मैं आपको, उन देश में देखो लोगों को खुश है वो लोग। What is the best advice you ever received? कोई ऐसी एडवाइस जो आपको किसी ने दी हो? बेटे, मैं एक्सपीरियंस से जो आजकल के यूथ है, मैं इनको यही एडवाइस करूँगा कि कोई भी काम करो वो अपनी सच्चाई, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से करो। लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इसको मत भूलो। जो भी तुम काम कर रहे हो उसको पूरे मन से करो। निजी स्वार्थ आखिर में रखोगे तो तुम हमेशा सक्सेसफुल होगे।
अगर निजी स्वार्थ पहले आएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और क्या कहते हैं आपके राष्ट्र का सबसे बाद में आएगा तो फिर आप फेलियर होगे। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा सच्चाई, ईमानदारी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी इसमें ध्यान दो और अच्छे से करो, मेहनत करो। कोई भी काम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आप देश सेवा ही कर रहे हैं। आप देखें छोटा, मैं ऐसा नहीं कि मोची कोई गलत काम कर रहे हैं, कॉबलर है वो भी तो आपका सड़क में बैठ के वो भी आपके लिए जूते ठीक कर रहा है आपका, क्योंकि आप अगर जूते खराब हो जाएंगे, रिपेयर करने वाला कोई नहीं होगा तो आपको फेंकना पड़ेगा। तो वो आपका जूता रिपेयर कर रहा है, आपके देश का पैसा बच रहा है। ठीक है, 2 पैसे वो भी ले रहा है आपसे, पर आपका 400-500 रुपया बच गया है, तो वो किसके, देश का ही तो बच रहा है। कोई भी काम बेटे, छोटा है बड़ा है, जितना जिसका कैलिबर है, जितना जिसने पढ़ा है, जितनी सोच है, उस हिसाब से जो भी काम कर रहा है वो सब काम बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि उसमें ईमानदारी हो, निजी स्वार्थ बाद में आए। सर इस पॉडकास्ट को मैं एंड करते हैं सर। एंडिंग में बस ये कहना चाहूँगा कि ये कि मतलब आपसे, मतलब आप जैसे लोगों से, आर्मी पर्सन से, मतलब ये हम यूथ को ना काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी इंस्पायरिंग होता है। तो थैंक यू। अच्छा लगा शुभम, थैंक यू, एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस, बेस्ट ऑफ लक, गुड हेल्थ, एंड may Almighty bless you with everything what you want in your life. Thank you. सो आप सब लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो इस पॉडकास्ट से आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, बट जो मेन चीज़ मैंने सर से सीखी तो वो ये थी कि जब ये पॉडकास्ट पूरा ख़त्म हो चुका था, मैं और सर बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो सर ने एक रैंडमली एक बात बोली मुझसे कि शुभम, क्या तुम्हें मेरी पूरी प्रॉपर्टी देखनी है? तो मेरे को दिमाग में लगा कि वो अपनी एक्चुअल जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी सर, हाँ देखनी है। तो सर ने एक्चुअली अपना फोन निकाला और उसमें एक फोटो मुझे दिखाई जो कि उनके पूरे लाइफ टाइम के अचीवमेंट्स, मेडल्स हैं। सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मुझे ये एहसास हुआ ना कि एक आर्मी पर्सन और एक नॉर्मल पर्सन में क्या डिफरेंस है। एक नॉर्मल पर्सन अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, घर को समझता है, बट एक आर्मी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी समझता है कि उसने बिना किसी चीटिंग के और पूरी सेवा भाव से अपनी देश की जो सेवा करी है उसको वो एज अ प्रॉपर्टी लेता है। तो ये बात मुझे बहुत डीपली टच करी है। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो अगली बार मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।